میں انجم عظیم آبادی ایک مضمون پیش خدمت کر رہا ہوں۔ مضمون کا عنوان ہے عباس علی خان بے خود کے ایک چہیتے شاگرد شاہد جمیل شاکری۔ مضمون کا عنوان ہے عباس علی خان بے خود کے ایک چہیتے شاگرد شاہد جمیل شاکری۔ شاعری کے آغاز کے ساتھ ہی راجہ بازار کے جن شعراء سے میری شناسائی ہوئی اور اخیر وقت تک رہی، ان میں شاہد جمیل شاکری بھی شامل ہیں۔ شاہد راکم الحروف سے عمر میں 5 سال اور شاعری میں 7 سال کے سینئر تھے۔ 39 میں بہار شریف ضلع پٹنہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ہوش راجہ بازار کے محلہ دھڑبگان میں سنبھالا۔ محنت کش طبقہ سے تعلق تھا۔ کلکتہ کارپوریشن کے اردو اسکول سے ہوتے ہوئے ML جوبلی انسٹیٹیوشن میں پہنچے۔ اس زمانے میں حضرت علقمہ شبلی اسی اسکول میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اسی حوالے سے شاہد جمیل کا شبلی صاحب سے استاد کا رشتہ قائم رہا۔ اسکول فائنل کے بعد سینٹرل کالج، مولانا آزاد کالج میں IA میں داخل ہوئے۔ معروف شاعر و ادیب پروفیسر عباس علی خان بے خود اس وقت کے صدر شعبہ اردو تھے۔ ایک روز حسب معمول وہ اپنے نئے شاگردوں سے ان کے حالات معلوم کر رہے تھے۔ جب شاہد کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ سر، میں کالج کے بعد جیب اور پڑھائی خرچ نکالنے کے لیے بیڑی بناتا ہوں۔ شاہد کے مطابق بے خود صاحب یہ سن کر کچھ فکر مند ہو گئے۔ کلاس کے بعد انہوں نے انہیں آفس میں بلایا، کہا کہ بھائی، آپ اگر بیڑی بنانے میں ہی زیادہ وقت لگا دیں گے تو اسٹڈی کب کریں گے؟ ٹیوشن کیوں نہیں کرتے؟ شاہد نے کہا کہ سر، اس جانب میں نے توجہ نہیں دی۔ تب انہوں نے کہا کہ میں آپ کو 2 ٹیوشن کا بندوبست کیے دے رہا ہوں، بعد میں اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ BA تک کی تعلیم انہوں نے پائی۔ 64 کے بعد ریلوے میں ملازمت ملنے کے بعد ہی ٹیوشن کا سلسلہ ختم ہوا۔ شاہد کہا کرتے تھے کہ بے خود صاحب کی شفقتوں کی وجہ سے مجھے حوصلہ ملتا رہا۔ 1955 سے 57 میں ایک اشتراکیت اور ترقی پسند شاعر عثمان عارفی الہ آبادی اپنے امیر باپ سے ناراض ہو کر کلکتہ چلے آئے تھے۔ بے سہارا تھے۔ کمیونسٹوں نے ان کے رہنے کا بندوبست نارپور لانگا چملوک سے لین میں کر دیا۔ گزر بسر کے لیے عارفی نے بیڑی کا کام سیکھا۔ اسی دوران میں شاہد جمیل شاکری نے ان سے شعری رموز و نکات سیکھے۔ کلکتہ سے عارفی کے رخصت ہونے کے بعد شاہد جمیل شاکری حضرت شاکر کلکتوی کے شاگرد ہو گئے۔ ترنم سے غزل پڑھا کرتے تھے۔ رجحان ترقی پسندانہ تھا۔ بعد میں اپنے قلمی نام میں شاکری کا لاحقہ لگا لیا۔ شاعری کا آغاز 1958 میں کیا تھا اور میرے اندازے کے مطابق 75 تک اس سلسلے کو قائم رکھا۔ کمیونسٹ پارٹی سے لگاؤ ہونے کی وجہ سے وہ مزدور تحریکوں کا ایک حصہ بن جایا کرتے تھے۔ کلکتہ بیڑی مزدور یونین نے بیڑی مزدوروں کی مزدوری میں اضافہ کے لیے جب ہڑتال کی پکار دی اور ہڑتال ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ روزنامہ آبشار کے لیے ہڑتال کی بابت خبریں اکٹھا کر کے آبشار کو ارسال کرنے میں جٹے ہوئے ہیں۔ لیفٹسٹ ہونے کی وجہ سے ان کے مراسم جلد ہی انجمن ترقی پسند مصنفین کے لوگوں سے بھی ہو گئے تھے۔ سالک لکھنوی کے ہاں حاضریاں دینے والوں میں
ये भी शामिल थे। खालिद लखनवी ने उन्हें मशवरा दिया था कि ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए हफीज जालंधरी के शाहनामा इस्लाम को पढ़ा कीजिए। अपनी फालियत से कॉलेज में मारूफ हो गए थे। कॉलेज के दीवार गिर जरीदे की तकमील में उनका भी हिस्सा होता। गालिबन स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। कॉलेज के सालाना तरही मुशायरे में मैंने उन्हें अनाउंसिंग करते हुए भी देखा। टैगोर जयंती के मौका पर पाक सर्कस मैदान में कुल हिंद मुशायरे में साहिर लुधियानवी भी आए थे। मुशायरा कमेटी ने साहिर की निस्फ मेज़बानी की जिम्मेदारी शाहिद को सौंपी थी। हामी गोरखपुरी, रोशन नियाजी, इब्राहिम होश, नाज़रुल हुसैनी, एहसान दरभंगवी, शमी मौलवी, जज मौलवी, एजाज अफजल और शहर के दिगर शोरा से सलामो दुआ का सिलसिला कायम था। 1968 में उस्ताद मोहतरम शाकिर कलकत्तवी दुनिया से उड़ गए थे। हम लोगों के साथ शाहिद भी हजरत रज़ा मजहरी से मशवरा सुखन करने लगे थे। इस वसीले से अल्लामा जमील मजहरी की शफ़क़तें भी उन्हें मयस्सर हुईं। रेलवे में मुलाजमत के ताल्लुक से उनका क़याम ज़िला मुंगेर के जमालपुर में हो गया था। राकुल हरूब को जमालपुर के कुल हिंद मुशायरे में शिरकत का मौका मिला था। मैंने उस दरमियान ये महसूस किया कि उन्होंने जमालपुर में अपना एक बड़ा हल्का बना लिया है। मशहूर सहाफ़ी महमूद अयूबी, शाह ज़दीमाबादी के आखिरी शागिर्द शरफ बिहारी, प्रोफेसर महदी शेख पूर्वी से उनके गहरे मुरासिम हैं। गुलाम सरवर और शीर मुजफ्फरपुरी का नयाज उनके तवस्सुत से ही हुआ था। बज़्म शाकिरी के मिंबरों में उनकी एक अलग शनाख्त थी। बज़्म के मुशायरों में शिरकत को तरजीह देते, तरही व गैर तरही गज़लें पेश करते। बज़्म शाकिरी के साबिक जनरल सेक्रेटरी अयूब खान शैदा ने पार्क सर्कस ट्रांस डिपो के आसपास एक तरही मुशायरे का इनेकाद किया था। सदर मुशायरा प्रोफेसर अब्बास अली खां बेखुद ने अपने सदारती खुतबे में कहा था कि आज के इस मुशायरे में हासिल मुशायरा शेर शाहिद जमील शाकिरी का हुआ है। शेर ये था, यूं दैरो कली साब ही रखते हैं कशिश, लेकिन संगे दरे जाना फिर संगे दरे जाना है। यूं दैरो कली साब ही रखते हैं कशिश, लेकिन संगे दरे जाना फिर संगे दरे जाना है। शाहिद जब भी मुंगेर से आते अपने उस्ताद बेखुद साहब के दर दौलत पर ज़रूर हाजिर होते। उनके साथ मैं भी होता। रेलवे में उनकी तरक्की TTE के तौर पर होना तय हुआ। ये मखमसे के शिकार हो गए। मुझसे सलाह चाही तो मैंने खुद को इस काबिल नहीं समझा। मैंने ही उनसे कहा कि चलिए प्रोफेसर साहब से मशवरा करते हैं। हम दोनों वहाँ पहुँचे, मुद्दा बयान किया। प्रोफेसर बेखुद साहब ने मशवरा दिया कि अगर आपका मिजाज 2 पैसे बनाने का है तो कबूल कर लीजिए, वरना मत कीजिए। सर की बात पर अमल करते हुए उन्होंने इसको कबूल नहीं किया। सुना जाता है कि TTE पर रुपए बरसते हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए रेलवे के मुलाजमीन यत्न करते हैं, लेकिन शाहिद की ईमानदाराना तबीयत ने इसे गवारा नहीं किया। 1970 में राकमुल हुरूफ की तहरीक पर एक अदबी अंजुमन मरकज़ फ़िक्र फ़न की तश्कील हुई थी। उसके बुनियाद गुजार शायरों में हज़रत अब्दुल मन्नान सब्र, मौद शाकिरी, शाहिद जमील शाकिरी, सफ़ीरुद्दीन कमाल, हलीम साबिर और अंजुम मदीनाबादी के नाम शामिल हैं। जबकि कमेटी में इलाके के मखसूस अदब नवाज़ों को भी शामिल किया गया, जिनमें नस्र निगार सुलेमान खुर्शीद भी शामिल थे। शाहिद जमील की फ़ालियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि वो जमालपुर से मरकज़ के प्रोग्रामों में
शरीक होने के लिए तशरीफ़ लाते और इलाके के अवामी मुशायरों में भी इनका शिरकत होती। ट्रांसफ़र होकर कलकत्ते तो आ गए, लेकिन पहले जैसे नहीं रहे। आहिस्ता आहिस्ता खुद को समेटने लगे और फिर अदबी दुनिया से खुद को अलग कर लिया। मंजरनामे से गायब हो जाने वाले को कौन कितना याद रखता है। शाहिद के साथ भी यही मामला हुआ। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 75 के बाद अदबी मंजरनामे में नहीं रहे, लेकिन यही क्या कम है कि 17 वर्षों की अदबी ज़िंदगी में बहैसियत शायर पुराने लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी का तर्जुमान रूह अदब में दिल्ली के एक अहले कलम के एक मजमून गालिबन कलकत्ते के शोरा का अदबी रुझान में उनका भी तस्करा है। सुबकदोशी के बाद तोफिया के औलाद हुसैन स्कूल से खुद को वाबस्ता कर लिया था। स्ट्रगल पीरियड में ट्यूशन ही उनका सहारा बना था। आखिरी वक्त तक स्कूल के अलावा घर में भी ट्यूशन करते रहे। अंग्रेज़ी अच्छी थी, इसलिए कॉलेज के तालिब इल्म भी उनसे अंग्रेज़ी सीखने आया करते थे। 3 फरवरी 1916 को रेलवे अस्पताल सियालदह में दुनिया छोड़ गए। उनके ज़ाती मकान वाक़े तोफिया से उनका जनाजा उठा और गोबरा कब्रिस्तान में सपुर्दे लहद किए गए। यही क्या कम है कि उनके गम में मैंने जिन मस्जिद के इलाके को सोगवार देखा, हक मग़फ़िरत करे अजब आज़ाद मर्द था। शाहिद अदबी मंजरनामे से गायब हो गए थे। वैसे भी मंजरनामे में न रहने वालों को कौन कितना याद रखता है, लेकिन हो सकता है कि वो इस शेर के हवाले से याद रखे जाएं। शेर यूं है कि यूं दैर व कलीसा भी रखते हैं कशिश, लेकिन संगे दरे जाना फिर संगे दरे जाना है। यूं दैर व कलीसा भी रखते हैं कशिश, लेकिन संगे दरे जाना फिर संगे दरे जाना है। 40-50 साल कब्ल तवील बहरों में भी शोरा गज़लें कहना पसंद करते थे। शाहिद के भी चंद शेर उन्हीं में पेश खिदमत हैं। मुलाज़ा करें, हम इस दुनिया को कहते हैं एक जहद अमल की बस्ती है। हम इस दुनिया को कहते हैं एक जहद अमल की बस्ती है। कुछ लोग अभी तक गफलत में अय्याम गुजारा करते हैं। दूसरा शेर है कि तूफान से टकरा जाते थे, गिरदाब से खेला करते थे। तूफान से टकरा जाते थे, गिरदाब से खेला करते थे। साहिल पर पहुंचकर डूबे तो तूफान का शिकवा कौन करे। तूफान से टकरा जाते थे, गिरदाब से खेला करते थे। साहिल पर पहुंचकर डूबे तो तूफान का शिकवा कौन करे। और एक शेर है कि चलना अपना जानिब मंजिल कल भी था और आज भी है। चलना अपना जानिब मंजिल कल भी था और आज भी है। जहद अमल ही जिस्त का हासिल कल भी था और आज भी है। आखिरी शेर है, देखिए कि कोशिशें पहम के बावजूद भी अगर कोई नाकाम होता है और नाकाम होने पर जो उसके चाहने वालों को जो गम का एक एहसास होता है, उसी हवाले से देखिए एक शेर कि तूफान से निकलकर साहिल पर शायद कोई कश्ती डूब गई। तूफान से निकलकर साहिल पर शायद कोई कश्ती डूब गई। एक शोर बपा है साहिल पर, खामोशी है तूफानों में।